Hello and welcome to Study IQ. Quoting the lines of our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, if you need to shine like a sun, you need to first burn like a sun. और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी है जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की अपने सपने के लिए। एक बहुत ही अच्छी जॉब जो कि वो नासिक में कर रहे थे उसको छोड़ के आए एंड ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑल द वे फॉर यूपीएससी सीएपीएफ, क्योंकि उनका जज्बा था, जुनून था फॉर ज्वाइनिंग द सर्विसेज एंड सर्विंग द नेशन इन यूनिफॉर्म। बहुत बहुत स्वागत है अजय यादव जी, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2019 में 87 रैंक हासिल की है। बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, ma'am. My pleasure to be here. अजय, हाउ इज द फीलिंग? यूपीएससी सीएपीएफ आपने फाइनली क्लियर किया, वो भी अपने पहले प्रयास में। It was a good feeling, and it was full of emotions, pride, and there was a sense of belonging in myself. I can do it, and I have done it. अजय, तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग रैंक्ड 87 इन यूपीएससी सीएपीएफ, हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। Okay, ma'am. I belong to district Eta in Uttar Pradesh, and since due to job of my father in paramilitary, I have been visiting in North Indian states like Uttarakhand, Punjab, Delhi, Haryana. So my schooling has been done in two fragments, in Sonipat and then in Dehradun. And after that, I graduated from NIT Jalandhar, and then onwards I worked for a company, a private company in Nasik. And in 2019, January 2019, I started preparation for UPSC exams, and this was my first attempt for CAPF because my father was also in. So most of the things were well aware about me, the officer life culture there and the things over there. So and moreover, some of my friends were in NDA and in CAPF. So I wanted to serve the nation in uniform. So this was a good job for it. अजय, आपकी बातों से ये तो समझ में आता है कि जो जज्बा था सर्विसेज को ज्वाइन करने का वो आपके फादर की तरफ से ही आता है। यू हैव सीन हिम ग्रो, तो डेफिनेटली वो एक जुनून तो होगा उनको देखने के बाद। बट हम आपसे जानना चाहते हैं, व्हाट वाज द मोटिवेशन? क्या आपको एग्जैक्टली क्लिक किया था, यस दिस इज द सर्विसेज आई हैव टू गो फॉर? Apart from my inspiration from my father, I also analyzed when I was young that ITBP used to contribute in flood rehabilitation program, and at the same time they used to organize the fair for communal harmony in our campuses and the entire area, and then food distribution programs. So at that point, I concluded and analyzed that apart from internal security, the paramilitary forces also contribute in social reforms and in terms of communal harmony. So that was a blend of power and responsibility with a comprehensive view of your duties. So that prompted me to join these forces in uniform. Definitely, काफी it is a great motivation to hear as well. आगे चलते और बात करते हैं कि किस तरीके से जर्नी शुरू हुई, क्योंकि हमें पता है यू वर डूइंग अ वेरी नाइस जॉब इन नासिक। हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू लीव एवरीथिंग बैक देयर और फिर आके यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी करना? Certainly, it was not a good move because to leave behind a comfort zone always means it provides us uncertainty. So, but I consulted my family and I took guidance from my brother-in-law, who guided me that things are in my favor, like age is in my favor and attempt is in my favor. So it's a good time to leave out the private sector and contribute the internal security and serve the nation in uniform. अब हम स्पेसिफिकली आते हैं तैयारी की तरफ। तो किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई? क्या स्ट्रैटेजी आपने अपने लिए फॉर्मुलेट की थी? My strategy was basically that was means since I was the first time giving exam and I was best candidate, so the authentic guidance was very much reliable to me. So I relied on the authentic sources. So the first thing which I did was I read out the standard books which are needed to this.
So standard books like for modern history, Spectrum, and I also read Bipin Chandra also. And for economy, Murnal sir notes, which are very standard to prepare for CSC or whether CAPF, and most of the stuff if you are persuading for UPSC. After that, I just analyze the past year papers. So after analyzing those papers and after going through one reading, I was well aware with the depth of the questions and the hardness of the exam, and moreover the idea that after means people are aspirants are increasing day by day, so the competition level and the cutoff is increasing year by year. So for that means the optimum level to attempt the questions and the optimum level for the cutoff, and I have to enhance the educated guess. So for that, I opted for test series. So then when I was well aware with the hardness of the exam, then test series, and at last means I prefer for the mock exam. अजय, ये तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि जो भी एस्पिरेंट यूपीएससी सीएपीएफ के अलावा भी कई सारे एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट करते हैं, तो बहुत जरूरी है उस एग्जामिनेशन का लेवल आप खुद से जान लें, खुद से एनालाइज करें, एंड देन यू विल बी प्रिपेयर्ड उस एग्जामिनेशन को अच्छे से समझ के अटेम्प्ट करने के लिए. आगे बढ़ते हैं अजय और बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी. पेपर 1 ऑब्जेक्टिव था, एंड ऑब्जेक्टिव में द मीन आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दैट शुड बी बेस्ड ऑन समहाउ योर नॉलेज. उसके बाद एजुकेटेड गेस, जिस हिसाब से कट ऑफ का लेवल बढ़ते जा रहा है, एंड उसके अलावा आपको अपनी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. तो इन 3 सेक्टर्स में मैंने पेपर 1 को डिवाइड किया हुआ था. तो मॉक्स एग्जाम से मतलब मैंने अपनी जो बेसिक स्टफ था उसको प्रिपेयर किया. देन लास्ट ईयर के एग्जाम्स करने के बाद हार्डनेस पता लगी थी, और उसके बाद मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और एजुकेटेड गेसेस को बढ़ाया. एंड फॉर पेपर 2 ऐसे जो होते हैं वो उसकी डेप्थ होते हैं. तो ऐसे को इंक्रीज करने के लिए कुछ साइट्स पर मैं जाता था जो डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर ऐसे देती थी विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स. उनको सॉल्व करता था करंट अफेयर्स को. उसके अलावा प्रीवियस ईयर के जो एसेज थे वो सारे मैंने सॉल्व किए थे अपनी वर्कबुक में, और उसके बाद मैंने उनको एनालाइज किया था टाइम बीइंग के बाद कि अब मैं उनमें कैसे चीजें और एनहेंस कर सकता हूँ. बिकॉज अल्टीमेटली योर कॉम्पिटिशन इज विद योर सेल्फ. आपको रोज इंप्रूव करना है अपने आप को अगर आपको एक्सेल करना है. तो इतनी सही ही बात मतलब धीरे धीरे मैंने उसको अपने अंदर इम्प्रोवाइज किया. पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, उसकी प्रैक्टिस, उसको लिखने की आंसर्स कैसे आपने लिखे उसके लिए, और कब से लिखना शुरू किया? जब मैं स्टैंडर्ड बुक से एक बार वेल प्रिपेयर्ड हो चुका था, उसके बाद लास्ट ईयर के पेपर्स देख लिए मैंने और कुछ मॉडल पेपर देख लिए. उसके बाद आई वॉज वेरी मच पंक्चुअल टू सॉल्व लास्ट ईयर पेपर एंड न्यू क्वेश्चन ऑन ऐसे. तो ऐसे में मतलब कुछ चीजें ऐसे जैसे मैं करंट अफेयर्स काफी यूज करता था एंड डाटा एंड सम ऑफ द कमिटीज जो इन्वॉल्व होती हैं उस ऐसे के आसपास, कुछ आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनसे कंक्लूड करना, और मोर ओवर कुछ कोटेशंस एट बैक ऑफ द माइंड. तो डाटा आपके पास होने चाहिए. कोटेशंस का ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो रूल नहीं है कि आप कोटेशंस कोट ही करोगे, प्रेशर है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर आंसर. तो उसको प्रीफर करने की जरूरत रहती थी और मैं करता था उनको. और मेजरली मैं करंट अफेयर से बहुत रिलाई करता था ताकि वो चीज जो जिस फ्रेम में वो क्वेश्चन पूछा गया है, जो ऐसे पूछा गया है, वो फ्रेम में डेसिफर कर पाया हूँ. आई हैव टू गिव दिस आंसर टू द आंसर कॉपी चेकर को. मुझे बताना है कि मुझे वो समझ आ गया कि जिस कंटेक्स्ट में पूछा गया है वो क्वेश्चन वो कंटेक्स्ट में समझ आ गया, और वो करंट अफेयर्स या किसी डाटा के थ्रू ही चीज उस तक पहुंच सकती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि आप करंट अफेयर से चीज़ों को लिंक करें और किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन समझ जाएं, तो जब आप लिखेंगे तो सोने पे सुहागा, जैसे अजय ने बताया. करंट अफेयर्स की बात आपने की, तो हम करंट अफेयर्स की ही बात कर क्वेश्चन पूछते हैं. कैसे करंट अफेयर्स के सेक्शन को आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि ये बहुत ही मेजर चंक हो जाता है. बेसिकली करंट अफेयर्स मैंने 2 तरह से प्रिपेयर किए थे. एक ऑनलाइन में भी रीडिंग स्टफ, एंड सेकेंडली वीडियोस, एंड अपार्ट फ्रॉम इट ऑफलाइन स्टफ जो मंथली मैगजीन पर डिपेंडेंट था. ऑनलाइन में मैंने ऐसे चैनल सब्सक्राइब करके रखे थे जो माइन्यूट से माइन्यूट करंट अफेयर्स को भी डिटेल तरीके से बताते हैं.
मैं स्टडी आईक्यू का खुद जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने पढ़ा था उसमें, वर्ल्ड हिस्ट्री के टाइम से जब आपकी एक्स फैकल्टी ने उसके ऊपर वीडियोस डाले थे, तब से मैं उसको फॉलो किया, और माइन्यूट से माइन्यूट करंट अफेयर्स के जो यूपीएससी में उससे क्वेश्चंस डेराइव हो सकते हैं, वो मैं उसके थ्रू अपडेटेड रहता था हमेशा करंट अफेयर्स में। अपार्ट फ्रॉम इट, जो मैंने पहले बताया, कुछ साइट्स पर जा करके मैंने ऐसे जो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आते थे उनको सॉल्व किया था। अजय, ऑल्दो आपने अभी मेंशन किया कि यू हैव बीन अ रेगुलर फॉलोवर ऑफ स्टडी आईक्यू, बट क्या डिफरेंस आपने अपनी जर्नी में महसूस किया आफ्टर गेटिंग द गाइडेंस ऑफ स्टडी आईक्यू? स्टडी आईक्यू पर एक तो करंट अफेयर्स आई थिंक बहुत ही ज्यादा, मतलब आप किसी भी न्यूज से आप अनअवेयर नहीं रह सकते इफ यू आर सब्सक्राइबर स्टडी आईक्यू। अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो स्टडी आईक्यू पर ही, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के आप कोर्सेज देखेंगे वो स्टडी आईक्यू पर ही मिलेंगे, इतनी डेप्थ में एनालिसिस करके। इसके अलावा सीएपीएफ के जो जनरल साइंस के कोर्सेज हैं वो भी स्टडी आईक्यू पर बहुत ही मतलब क्वालिटी मटेरियल है, तो ये भी मैंने प्रीफर किया था। अजय, हमें बहुत ही खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाए, और बहुत वी आर वेरी कीन एक्साइटेड टू सी यू इन यूनिफॉर्म ड्रेस्ड अप रेडी टू सर्व द नेशन। अजय, हम रिटन एग्जामिनेशन के काफी सारे एस्पेक्ट की बात कर चुके हैं, बट एक चीज जो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस आ जाती है, और आपने भी मेंशन किया है पहले भी कि किस तरीके से एनालाइज करते थे आप अपने आप को, असेस करते थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं। एज आई मेंशन, टेस्ट सीरीज से मैम एक तो हार्डनेस ऑफ द एग्जाम और रिलेटिव परफॉर्मेंस, और एक तरह से दैट विल एक्ट एज एन फिलर, जो आप टॉपिक्स बीच में छोड़ देते हो कि ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो टेस्ट सीरीज के थ्रू फिलअप हो जाते हैं। तो ये तीनों काम टेस्ट सीरीज के थ्रू हो जाते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम इट एक पंक्चुअलिटी डेवलप हो जाती है, और एक अपने आप में, मैंने बताया ना, इम्प्रोवाइजेशन करने की टेक्निक आ जाती है कि मेरे जो स्वॉट एनालिसिस टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अजय, कोई स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको टेस्ट सीरीज वो अटेम्प्ट तो करते हैं, बट किस तरीके से वो समझें कि दे आर ऑन द राइट ट्रैक? टेस्ट सीरीज में एनालाइज करने के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं सीएपीएफ के, उसके साथ आप एक बार उस टेस्ट सीरीज का जो मटेरियल है उसको, आपको जो सैंपल आपके पास है उसको आप मैच करने की कोशिश कीजिए। उससे आपको चीजें एनालाइज हो जाएंगी कि मतलब कितना उसके रिलेटेबल हैं चीजें, क्योंकि डायरेक्शन बहुत मैटर करती है टेस्ट सीरीज। मतलब अगर आप अपनी एनर्जी टाइम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी टेस्ट सीरीज में, तो बहुत मैटर करता है कि वो चीजें यूपीएससी के सिलेबस के साथ और जो अप्रोच के साथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके साथ वो कोलैबोरेट कर सके। हमने एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली रिटन एग्जामिनेशन के काफी सारे एस्पेक्ट की बात कर ली। क्या जो एस्पिरेंट आते हैं उन्हें पहले से खुद में कुछ ऐसी क्वालिटीज असेस कर लेना चाहिए, उसके बाद ही सीएपीएफ एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए? दिस इज अ सर्विस ऑफ ग्रेट परसिवरेंस, बहुत सारी चाहिए होती हैं, वी एक्सपेक्ट। तो पहले से ही कुछ अपने आप को एनालाइज करके ही इस एग्जामिनेशन में बैठे? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। मतलब अभी नहीं पूछेंगे अपने आप से तो वो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे, मीन्स वो इतना डेप्थ में आपके पास ले जाएंगे। यू शुड आंसर वाई, मतलब वाई आप अपने आप में खुद को ही आंसरेबल होना चाहिए कि मैं क्यों इतने एफर्ट्स कर रहा हूँ, या फिर मैं कोर्सेज ज्वाइन क्यों करना चाहता हूँ। तो आप अपने आप को जिस दिन कन्विंस कर लेंगे तो डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ लॉयल्टी आपके अंदर आ जाएगी, और यही चीज आपको इंटरव्यू में भी आगे मतलब मोटिवेट करेगी उनके आंसर देने के लिए आपको, क्योंकि आपके पास एक वैलिड रीजन है कि वाई वाई वाई। तो उस वाई को खोजने की कोशिश कीजिए आप कि मुझे ये चीजें क्यों करनी है, और उसके आसपास ही चीजें चलेंगी। अजय, हमने देखा है जैसे यूपीएससी सीएपीएफ के कई सारे एस्पिरेंट्स जो भी हैं, साथ ही साथ यूपीएससी सीएसी के भी कई एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन का लेवल और कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। तो जो सिंपली यूपीएससी सीएपीएफ की तैयारी करते हैं, कहीं क्या वो स्टूडेंट कहीं एक लैग रहता है उनको, या फिर इट्स ऑल नॉर्मल एज पर द कंपटीशन? अब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सीएससी की अपनी एक डायमेंशन है, उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स है, और सीएपीएफ की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि आपको ही पता, सीएससी में जो लोग अपियर करते हैं उसमें से काफी लोग तो इसमें एलिजिबल ही नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेट का क्राइटेरिया है, आपकी हाइट का क्राइटेरिया है, चेस्ट का क्राइटेरिया, फिजिकल का क्राइटेरिया है, मेडिकल का क्राइटेरिया है। तो ये जो क्राइटेरिया है इसकी वजह से काफी लोग मतलब इसमें एलिजिबल ही नहीं होते हैं।
अपार्ट फ्रॉम विलिंगनेस कि वो करना चाहता है। तो ये एक अलग बॉल पार्क गेम है, यहाँ पर मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके अलावा ये डोमेन भी एक अलग है, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर इससे और पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड है। तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मतलब उनकी वजह से। हाँ, ये जरूर है कि जो प्राइमरी स्टफ है सीएपीएफ और सीएससी को पढ़ने के लिए, वो प्राइमरी स्टफ सेम है। सीएससी में आपको उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रूप देखना है, और यहाँ पर आपको उस चीज को बीइंग एन एसी और बीइंग एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी, तो उसमें आपको कैसे डील करना, दोनों डिफरेंट है। और ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है कि जो सीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि जनरली आपने जैसे कहा कि सीएससी की प्रिपरेशन करने वाले उसको एज अ बैकअप यूज करते हैं, बट उसमें भी काफी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिसको नहीं निकाल पाते हैं। और डिफेंस की जो तैयारी करते हैं कैंडिडेट, उनका अपना एक एज होता है इंटरव्यू में। ये सारी तो हमने बातें कर ली क्वालिटीज की, एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन की। फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। तो अजय, आप बताएं कैसा आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया था इस टेस्ट के लिए? एज सच फिजिकल एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी इस एग्जाम में हाई है ही नहीं। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी रखा हुआ है और आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स फिट है, तो आप इसको कर सकते हैं। जो मेरे लिए डाउटफुल था वो लॉन्ग जंप थी। तो लॉन्ग जंप की मैंने प्रैक्टिस की थी, जो घर के पास पार्क से वहां जा करके, और लेग्स को फ्लेक्सिबल किया, उसके बाद वो हो गया था। मतलब इट वाज अ स्मूथ प्रोसेस। और जनरली जो कैंडिडेट ठीक ठाक बीएमआई इंडेक्स के होते हैं और जो रेगुलर रहते हैं वो निकल जाते हैं। पीईटी के बाद आता है इंटरव्यू। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? आपने अपने आप को किस तरीके से इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रेजेंट किया? इंटरव्यू वाज गुड मैम, और बहुत ही मतलब पहले काफी सुना था इंटरव्यू यूपीएससी पैनल का ऐसे होता है ऐसे होता है। जब खुद इस चीज को एनालाइज किया तो डेफिनेटली मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब बहुत ही कुछ सीखने को मिला वहां से। क्योंकि द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस और द वे दे उन्होंने एक्सेल किया वहां से, बहुत बढ़िया था मैम चीज को। दे स्टार्टेड फ्रॉम अ टेक्निकल पोर्शन। मेरा जो बीटेक में मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट किए। आफ्टर दैट कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स हॉबी, एंड एट लास्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। और इसकी डाइवर्सिटी जो थी क्वेश्चंस की, वो रिमार्केबल थी। मतलब उस टाइम पर जैसे इफ यू अलाउ मी, मैं एक दो क्वेश्चन वहां से कोट करूं तो। डेफिनेटली वी वुड लव टू तो नो क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और उसे आपने कैसे टैकल किया। तो इफ यू अलाउ मी, मैं एक दो क्वेश्चन मैं आपको कोट करता हूँ। स्टार्टिंग में मैम जैसे ही मैं वहां पर गया तो माय फोटो जो उनके पास थी उसमें मैम मैं बियर्डेड था। तो दे आस्क्ड मी कि आपकी तो मतलब आप तो क्लीन शेव हो क्या और ये बियर्ड है? तो मैं कहा सर दैट इज फोटो, लॉकडाउन के टाइम का फोटो है। तो बोले ओके ओके ओके। देन मतलब 90 डिग्री शिफ्ट लेके दे आस्क्ड मी कि आपने जो टेक्निकल में पढ़ा उसका आप आर्म पुलिस फोर्सेज में क्या यूज करोगे, पैरामिलिट्री में? क्योंकि ये डिफरेंट है। पहले आप वहाँ पे एक सब्सिडाइज एजुकेशन करके आए हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और अब आप यहाँ पर आ रहे हो। तो मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था, मैं तो आंसर किया। उसके अलावा वो उन्होंने दे प्रिटेंडेड कि उनको चीज समझ ही नहीं आई कि आप तो बहुत मैच आंसर कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर मैं बुलेट पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। तो बुलेट पॉइंट्स के बाद भी दे आस्क मी कि नहीं हमें अभी भी समझ नहीं। तो मैं कहा सर मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूँ, 4 पॉइंट्स में समझाता हूँ आपको चीजों को। तो उसके बाद मतलब दे एंटिसिपेटेड दैट मोमेंट कि आपने उस चीज को मतलब ये नहीं कि उसको पहले ही क्वेश्चन में आप एकदम प्रेशर में आए और आपने उसको गिव अप, नेवर गिव अप अप्रोच के साथ किया। तो उसके बाद फिर वहां से चीजें थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव हुआ और चीजें स्मूथ चलती गई। जब वहां से चीजें निकल के बाहर इस चीज को एनालाइज किया तो समझ आया कि ये एक मतलब जो टेक्निक है ये वहीं पर ही समझ आती है। और वो मतलब उनका एक तरीका है आपके ऊपर ना प्रेशर बिल्ड करने का, द वे हाउ यू कैन डील द प्रेशर। तो वो मुझे इंटरव्यू के बाद ही समझ आया। क्या आपसे कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी पूछे गए? हाँ मेरे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रेफ्यूजी माइग्रेशन के ऊपर थे कि रेफ्यूजी माइग्रेशन इंडिया में काफी बढ़ रहा है, तो आपको लगता है ये थ्रेट है इंडिया के लिए? तो मैंने कहा नहीं, तो मतलब थ्रेट तो नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये आ सकते हैं। और इंडिया तो हमेशा से ही जो काफी डिफरेंट रिलीजन्स का क्रेडल रहा है, और इंडिया तो मदर ऑफ सिविलाइजेशन है। तो जहाँ पे भी मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई भी परसिक्यूटेड लोग हैं उनको इंडिया ने हमेशा ही एक्सेप्ट किया है। तो दैट इज नॉट थ्रेट। उन्होंने कहा कि नहीं फिर भी एंटी सोशल एक्टिविटीज हो रही है, तो इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे? तो वहां से फिर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वगैरह के रिलेटेड मैंने आंसर दिया कि जो हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है, और जो मेरा ड्यूटी चार्टर होगा उसके रिगार्डिंग में आंसर किया मैंने वहाँ।
अजय, जैसे हमें पता है कि सीएपीएफ के थ्रू डिफरेंट फोर्सेस हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे रिक्रूट करती हैं। आपकी क्या प्रेफरेंस है, कौन से फोर्सेस को आप ज्वाइन करना चाहते हैं? मैम, मेरी प्रेफरेंस इज पहले सीआईएसएफ थी एंड देन सीआरपीएफ, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज ड्यू टू द कॉम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स डोमेन ऑफ सीआईएसएफ एंड सीआरपीएफ। ये दोनों फोर्सेस में जाना प्रीफर करूंगा मैं। वी हैड अ डिटेल्ड जर्नी ऑफ योर्स, और बहुत ही हमें मजा आया आपकी जर्नी जानने के, किस तरीके से आप एक नासिक में बहुत ही कंफर्टेबल जॉब कर रहे थे एंड यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग और आप वापस आए, सीएपीएफ की तैयारी की, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आज आप सीएपीएफ के फाइनल लिस्ट में और आप हमारी कंट्री को सर्व करने के लिए एकदम से तैयार हैं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो यूपीएससी सीएपीएफ को टारगेट करते हैं? मेरा मैसेज मैम यही रहेगा कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर जो फिर से दे रहे हैं, ऐसा कोई मतलब पैनिकिया नहीं है इसमें तैयारी करने का कि आपको एक चीज मिल जाएगी तो हो जाएगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ये बोथ आर कीज। और आप मतलब अपने ऊपर जितना रिलायबल रखेंगे उतना आप करते जाएंगे। कई बार आपको लगेगा आप डार्कनेस में समझ ही नहीं आ रही चीजें, बहुत सारी चीजें आपके आसपास मैच्ड अप हो जाएंगी, बट यू हैव टू होल्ड योर नर्व। और आप अपने आप में रोज इम्प्रोवाइजेशन करेंगे और हार्ड वर्क पे करता है, और एक ना एक दिन मतलब आप वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। डेफिनेटली मैं इस चीज को कहना चाहूँ। थैंक यू सो मच अजय फॉर शेयरिंग दोज ब्यूटिफुल वर्ड्स। मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट हैं, आप हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते रहें, और जब तक आपकी मेहनत है आप डेफिनेटली एक दिन फाइनलिस्ट तक जरूर पहुंचेंगे। एंड थैंक यू सो मच अजय, एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाए, एंड we are looking forward to see you in uniform and serving the nation at its best. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. My pleasure to be here, ma'am. Thank you so much.